بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور اب آپ کو بتائیں MQM کا کراچی میں 13 یونیورسٹیاں بنانے کا اعلان۔ چیئرمین خالد مقبول نے یوتھ کنونشن میں خوشخبری سناتی۔ مصطفیٰ کمال بولے، لیڈر بد کردار نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ہم MQM 100 نئے آئیڈیاز پیش کرنے جاری ہے۔ فاروق ستار نے کہا، کراچی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو پاکستان مستحکم ہو جائے گا۔ پاکستان ہر طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی امید ہے تو یہ کہ پاکستان نوجوانوں کا ملک ہے۔ کراچی میں 13 یونیورسٹیاں آنے والی ہیں، ہر شعبے کی، ہر زندگی کے طریقے کی 13 یونیورسٹیاں آنے والی ہیں۔ نیفٹیک کا میگا سینٹر آنے والا ہے جو MIT اور کیلیفورنیا ٹیک کے ساتھ جس کا کہ ملاپ ہوگا اور جو ان کو ٹرین کریں گے۔ آپ تیار ہو؟ 28 سال کی عمر میں کراچی کا میئر بن سکتا ہوں تو پھر 26 سال 25 سال اور یہاں موجود جو 30 سال سے کم عمر کے میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، یہ بھی کراچی کے میئر بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹیلنٹ جو فلائی کر کے پاکستان سے باہر جا رہا ہے، اس ٹیلنٹ کو پاکستان ہی میں مقیم رکھنا ہے اور یہی پر اس کی صلاحیتوں کو، اس کی توانائی کو، وسائل کو، ہنر کو، تعلیم کو چینلائز کر کے پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے۔ اٹھو، جاگو، ملک کی معیشت میں، دنیا کی معیشت میں اپنا جائز حصہ حاصل کرو۔ لیڈر بد کردار نہیں ہو سکتا، لیڈر بد کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، جس کو اپنے پیچھے فالو کروانا ہے اس کا کردار برا نہیں ہو سکتا۔ لیڈر بد کردار نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بد کردار ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیڈر نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھا ہوا ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہم آج 100 ایسے نئے آئیڈیاز، 100 ایسے نئے طریقہ کار آپ کو یہاں پر پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، جس سے آپ ہر ایک آئیڈیا سے اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا 4 مہینے کے لیے گھریلو صارف کا ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ، اوور بلنگ اور مہنگی بجلی کے خلاف عوام پاکستان کا احتجاجی مظاہرہ۔ مفتاح اسماعیل کی قیادت میں کے الیکٹرک ہیڈ کوارٹر کے سامنے احتجاج، بولے کہ مفت بجلی نہیں دے سکتے نہ دو، ریٹ تو صحیح لگاؤ، اوور بلنگ تو نہ کرو۔ غریب کو بجلی فری نہیں ملتی تو کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے۔ حکومت نے بجلی کی قیمت بڑھا دی، نیپرا اوور بلنگ کا نوٹس لے۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیں۔ کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس کے باہر زائد بلوں، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف عوام پاکستان پارٹی کا احتجاج، بینرز اور پلے کارڈ تھامے مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں عوام پاکستان پارٹی کے مرکزی رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا، کسی کو بھی بجلی فری نہیں ملنی چاہیے، بجلی کے نرخوں میں اضافہ واپس، گھریلو صارف کا ٹیکس ختم اور کے الیکٹرک اوور بلنگ کا خاتمہ کرے۔ جولائی سے ستمبر تک ٹیکس ختم کیے جائیں۔ انکم تو ختم کر دی ہے آپ نے، تو کس چیز کا انکم ٹیکس لگا رہے ہو؟ 7.5% ایڈوانس انکم ٹیکس لگاتے ہیں، 18% آپ کو بجلی بیچتے ہیں تو سیل ٹیکس لگاتے ہیں۔ وہ ٹیکس فل فور جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر میں حکومت کو ختم کر دینا چاہیے۔ عوام پاکستان پارٹی کے رہنما شیخ صلاح الدین کا کہنا تھا کہ الیکٹرک زیادتیاں ختم کرے۔ ٹیکسز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، جو کئی کی جو ہے زیادتیاں ہیں اور ظلم ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو، اور اس کے لیے ہم اس تدارک کے لیے ہم وہ تمام تجاویز بھی دیں گے کہ جہاں پہ کم از کم ان کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ عوام کو فائدہ ہوگا۔ احتجاج میں خواتین کارکنوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور احتجاج کے آخر میں کے الیکٹرک انتظامیہ کو ایک یادداشت جمع کرائی گئی۔ کیمرامین شاہزیب حسین کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ بجلی کی 12 گھنٹے تک بندش شہریوں کا پارا ہے۔ قائد آباد، بٹائی آباد، کورنگی، اورنگی، سرجانی ٹاؤن میں بتے گل۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، ملیر، نادرہ آفس، سلمان ٹاور کی مکین خار، محمود آباد، منصور کالونی، لانڈی، خمیسو گوٹ اور میمن گوٹ کے علاقے بھی متاثر۔ شہریوں نے شکوہ کیا، بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کم پریشر سے پریشان گیس صارفین کی سنی گئی۔ گیس پریشر بہتر بنانے کے لیے سوئی صدرن کا بڑا اقدام۔
24 इंच कदर की लाइन को ट्रांसमिशन पाइपलाइन से जोड़ दिया। गैस पाइपलाइन के जुड़ने से गैस प्रेशर में बेहतरी आएगी। गैस के तातुल के बायस होटलों पर रश बढ़ गया। शहरी नाश्ता और खाना होटलों से लाने पर मजबूर हो गए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। सुरजानी के मुकाम पर सुई सदन गैस की नई पाइपलाइन का पुरानी लाइन से मुंसलिक करने का काम मुकम्मल। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने का काम का आगाज सुबह 5 बजे शुरू हुआ, जिसमें SSGC के तमाम मुताल्लिका शोबों से ताल्लुक रखने वाली टीमें, इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ समेत मेहनत कशों ने हिस्सा लिया। साइट पर काम के इंचार्ज फारूक शेख ने बताया कि सुई सदन की जगह पर गैस पाइपलाइन का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया है। ये तो काफ़ी महीनों से जो है ना पाइपलाइन वगैरह का काम जो है ना ऑपरेट था और इन प्रोग्रेस था। लाइन कंप्लीट हो गई है। अभी हुकअप करने के लिए यानी जो पुरानी लाइन है उनके साथ मिलाने के लिए सिस्टम के साथ जो है ना वो अभी काम जो है ना इस वक्त चल रहा है। जब आज कमीशन है तो यानी कि 100% कंप्लीट है ना। जो लो प्रेशर की कंप्लेंट्स थी ऑलमोस्ट जो है ना डोमेस्टिक में या कमर्शियल में या इंडस्ट्री में वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। सुई सदन गैस कंपनी के तरक्याती काम के बायस सनती और रहायशी इलाकों में गैस की फराहमी पीर की सुबह 5 बजे तक 72 घंटों के लिए बंद की गई है, जो शहरियों के लिए इम्तिहान बन गई, जिसके बायस शहरियों ने खाने पीने की अशिया की खरीदारी के लिए होटलों का रुख कर लिया। जिस घर में क्या कहते हैं खाने को नहीं है, वो बेचारा 25 रुपए की रोटी 20 रुपए की रोटी कैसे खरीदेगा। किसी के घर में 10 आदमी है तो वो क्या कहते हैं 400 रुपए की रोटियां ले लेगा, वो तो मर जाएगा, वैसे ही मर रहा है। कल खुद बिल भरकर आया हूँ, 7,000 रुपये गैस का बिल भेजा जो 2,000 का आता था, 1500 का आता था। इतनी महंगी कर दी है गैस, गरीब आदमी तो मर गया बिल्कुल। परेशान भी रहे, खाना भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं, रोटी भी नहीं पका सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये अच्छी बात थोड़ी है कि खाने से क्या भूखे प्यासे जाएंगे। बताओ, हमने तो ना लकड़ियाँ ली है ना कुछ लिया है। 48 घंटों की हमने बर्दाश्त किया, 32 घंटे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है भाई। ये आप देख रहे हैं गेले ने पानी, ये पानी भी नहीं है यहाँ पे, बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है। गैस तो वैसे भी नहीं आती, ये और मुसीबत आ गई। और बिल भी इतने आ रहे हैं, पहले 500 रुपये बिल आता था गैस का, अब कितना आ रहा है 1700 रुपये। मैं खुद भर के आया हूँ अभी। सुई सदन हुकाम के मुताबिक गैस पाइपलाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम कुछ ज़रूरी आजमाइशी मराहिल मुकम्मल करने के बाद दिए गए वक्त के मुताबिक पीर के सुबह 5 बजे से गैस की बहाली का आगाज़ कर दिया जाएगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मिल्क रिटेलर्स का दूध की पैदावार में 40% कमी का दावा वहीद गद्दी ने कमिश्नर कराची और वज़ीर-ए-आला सिंध को आगाह कर दिया। दूध की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कहा। दूध 300 रुपये लीटर फरोख्त हो रहा है। हीट स्ट्रोक के बायस जानवरों की अमवात से सूरत हाल ख़राब हुई। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। कराची में दूध की किल्लत शहरियों का इम्तिहान लेने लगी। मिल्क रिटेलर्स के तर्जुमान वहीद गद्दी का कहना है हीट स्ट्रोक से जानवरों की हलाकत के बायस दूध की पैदावार 40% कम हो गई, जो दूध की किल्लत का बायस बनने लगी। और लाखों जानवरों की दूध की पैदावारी सलाहियत में कमी, जिसके बायस 40 से 45% दूध की पैदावार में कमी वाक़या हुई है। तो जाहिर है जब पीछे से सप्लाई नहीं होगी तो रिटेलर क्या फ़रोख्त करेगा। वहीद गद्दी बोले रिटेलर्स ओपन मार्केट से महंगा दूध खरीदने पर मजबूर हो गया है। इंतज़ामिया मामले का नोटिस ले। तो जब वो सप्लाई नहीं मिल पाती है तो रिटेलर ओपन मार्केट से रुजू करता है। तो ओपन मार्केट में 300 प्लस में दूध इस वक्त अवेलेबल है, तो वो 300 प्लस का खरीद कर 220 रुपए का कैसे फरोख्त करेंगे, आप ही हमें समझाइए। मिल्क रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची और वज़ीर-ए-आला को खत लिखकर सूरत हाल की संगीनी से आगाह कर दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नाज़रीन, ताजरों ने मेयर कराची के सामने घुटने टेक दिए। एहतजाजी तहरीक रायगा होने का भी एतराफ़ कर लिया। अब्दुल्ला यूसुफज़ई बोले कि एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इजाफी किराए दे रहे हैं। केएमसी से सफाई इंतजामात बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। ताजिर हार गए, मेयर कराची जीत गए। ताजिरों की केएमसी मार्केटों के किरायों में इजाफे पर एहतजाजी मुहिम नाकाम। ताजिर किराए भरने पर मजबूर हो गए। ताजिर अब्दुल्ला यूसुफज़ई ने एतराफ़ कर लिया। मेन वजह ये है कि गर्मी के थे और ताजिर सारे बड़े उम्र के थे, तो उस गर्मी की वजह से लोग आके फिर कुछ लोग चले भी गए थे। लेकिन ये कि हमने देखा कि कानून से आगे हम आगे नहीं किए, मतलब जो तरीक़ेकार है हमने 150% के इजाफे के साथ अपने बिलें भर दिए। अब्दुल्ला यूसुफज़ई बोले मार्केटों के किरायों में इजाफे के बाद अब केएमसी को चाहिए मार्केटों में सफाई के इंतजामात बेहतर करे। मेयर साहब और केएमसी हमें तकरीबन जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं मतलब वो देनी चाहिए। इनको सफाई का काम होना चाहिए, मार्केटों में मुरम्मत का काम हो,
तो और आसानी के साथ हमें किराए की रसीद दी। मुतालबात तस्लीम करने से कबल ताजिरों ने कई एहतजाज किए, मगर चंद अफराद की शिरकत ने एहतजाज नाकाम बना दिया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। तेज हवाओं, गरज चमक और बारिशों की पेशगोई। शारिया फैसल से खतरनाक साइन बोर्ड्स न हटाए जा सके। साइन बोर्ड गिरने से कीमती जानों के ज़िया का भी खदशा। माजी में भी बिल बोर्ड्स गिरने से कई शहरी जख्मी हो चुके। शहरियों का बिल बोर्ड्स फौरी हटाने का मुतालबा। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। मैं मौसमियात की कराची में अगले चंद रोज तक तेज बारिशों की पेशगोई। तेज बारिशों और हवाओं से बुलंद इमारतों पर लगे बिलबोर्ड शहरियों के लिए खतरा हैं। तेज हवा और मूसलाधार बारिशों के सबब बिलबोर्ड गिरने का खदशा हो जाता है। माजी में भी बिलबोर्ड तेज हवा के बायस गिरने से शहरी जख्मी हो चुके हैं। शहरी और सूबाई हुकूमत ने बिलबोर्ड हटाने के अहकाम दिए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बारिशों से कबल बिलबोर्ड हटाए जाएं। कहते हैं कि मौसम ख़राब हो रहा है, कभी कहते तूफान आ रहा है, कभी कहते बारिश आ रहा है, लेकिन इससे पहले ये हटाना चाहिए क्योंकि ये आम गरीबों को मतलब नुकसान है। किसी के ऊपर गिर जाए, किसी की जान चले जाए तो इनके लिए नुकसान है। अभी बारिश का मौसम है, ठीक है, तो हवाएं भी तेज़ चलती हैं, तो जहाँ भी ये बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये तेज़ हवाओं की वजह से गिर जाते हैं। गिरने का ख़तरा होता है, अक्सर गिर भी जाते हैं। तो हुकूमत को चाहे कि भाई इनके ऊपर थोड़ी सख्ती करें ताकि ये बोर्ड को हटा दें, ताकि किसी की जान को नुकसान ना हो। शहर कराची की बड़ी शाहराहों पर बुलंद इमारतों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हैं जो बारिशों में किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इन्हें फौरी तौर पर हटाने से इंसानी जानों को नुकसान से बचाया जा सकता है। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर में सीवेज का निज़ाम दरहम बरहम। सेक्टर 13 हिजरी में गटर उबल पड़े। गंदा पानी मस्जिद सोसाइटी के घरों में दाखिल। इलाका मकीन बोले सीवेज लाइन ऊंचाई पर बिछाने से मसला पैदा हुआ। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। सीवरेज का अबतर निज़ाम और हल्की बारिश में गंदा पानी शहरियों के घरों तक पहुंच गया। मशरकी सोसाइटी के मकीन 2 साल से गंदे पानी में रहने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं गंदगी से वबाई अमराज फूट पड़े हैं। ये 2 साल से हम देख रहे हैं और ये मुसलसल ये गंदगी और ये पानी, हल्की सी बारिश होती है और ये आप देख रहे हैं कितनी गंदगी हो रही है। घरों में पानी बढ़ जाता है। ये तो अभी हल्की सी बारिश हुई है, अभी मज़ीद तूफ़ान आने की पेशन गोइयाँ हो रही हैं और ये इदारे आपस में लड़ रहे हैं और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। सेक्टर 13A गुलजार हिजरी में साबिक MNA के फंड से सीवरेज लाइन ऊंचाई पर बिछाई गई, जिसके बाइस गंदे पानी की निकासी मुहाल बनी हुई है। 1 घंटे की बारिश तो बहुत दूर की बात है, 20 मिनट की बारिश जो है ना हमारे लिए मसले मसाइल खड़े कर देती हैं। जी MNA फंड से ये मामलात जो है ना कुछ बेहतर हुए थे। पानी की लाइनें, ये लाइन डली थी, लेकिन वो एक्चुअली नशीबी इलाका होने की वजह से गटर लाइन जो है ना इन्होंने ऊपर डाल दी है, जो कि क्रॉस नहीं होता। पानी जो है ना हमारे घरों पे रिवर्स हो जाता है। मशरकी सोसाइटी के मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के बिल बाकायदगी से भरने के बावजूद न लाइनों में पानी आता है, न सीवरेज के पानी की निकासी हो रही है। ऐसे में मकीन किसके पास फरियाद लेकर जाएं? कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। ज़िला वस्ती में दीगर काउंसिल्स के अफसरान और मुलाजमीन का राज। लेबर फंक्शनल लीग का सख्त लायामल इख्तियार करने का इंतजार। लेबर विंग फंक्शनल लीग के रहनुमा बोले लांडी टाउन से आया मुलाजिम नासिर PAS चेयरमैन लख्ताबाद टाउन बना हुआ है। नासिबाबाद महकमे के पाक के माली फरूक ने लख्ताबाद टाउन में लूटमार मचा रखी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। लख्ताबाद टाउन चेयरमैन पर्सनल स्टाफ ऑफिसर नासिर खान लांडी टाउन का मुलाजिम निकला, जो महकमा इंसदादी तजावुज़ात के मामलात चलाकर हफ्तावार बुनियाद पर लाखों रुपए बटोर रहा है, जबकि गुलबर्ग टाउन का अफसर डायरेक्टर पार्क बना हुआ है। ये कहना था सीनियर नायब सदर फंक्शनल लीग लेबर विंग सैयद नजम रिजवी का। लियाकताबाद के अंदर एक एंटी इंक्रोचमेंट जो चल रहा है इंचार्ज, जिसका नासिर नाम है, नासिर खान, वो PA भी बने हुए हैं चेयरमैन साहब के, वो जो है एंटी इंक्रोचमेंट के इंचार्ज भी बने हुए हैं, वही जो है रेस्क्यू के इंचार्ज हैं। सीनियर रहनुमा लेबर विंग खुर्रम खान बोले दीगर कौंसलों से आए अफसरान और मुलाजमीन ने न सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, बल्कि असल हकदारों का हक मार कर आउट ऑफ टर्न तरक्कियां भी हासिल कर ली हैं। वज़ीर आला के जो अहकामात हैं, जिसमें खास तौर पर लिखा गया कि जो जिस काउंसिल से तनख्वाह लेता है वो उस काउंसिल में जाके काम करेगा, मगर ये अहकामात इन्होंने हवा में उड़ा दिए, मुसलसल उड़ा। क्योंकि चेयरमैन उन अफसरानों को लाइक कर रहे हैं जो उनको पैसे बना के दे रहे हैं, जो जाली कोटेशन बना के दे रहे हैं, जो उनके लिए स्क्रैप बेच रहे हैं। लेबर विंग फंक्शनल लीग के रहनुमाओं ने दीगर कौंसलों के अफसरान और मुलाजमीन को वापस असल कौंसलों में न भेजे जाने की सूरत में अदालत जाने का अंदिया भी दे दिया है। कैमरामैन अजलान शीबा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21।
PTI कराची डिवीज़न के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़। हाइपर स्टार के करीब पार्क पर पौधे लगा दिए गए। PTI सिंह की सदर हलीम आदिल शेख, एडिशन जनरल सेक्रेटरी रिजवान न्यासी, जाफरुल हसन और चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख ने मुहिम में हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। कराची को हरा भरा करने का मिशन तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन ने बीड़ा उठा लिया। PTI कराची के तहत हाइपर स्टार क्लिफ्टन के करीबी पार्क में 3000 पौधे लगा दिए गए। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने 1 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। PTI कराची डिवीजन के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने भी मीडिया से गुफ्तगू में शजरकारी मुहिम कामयाब बनाने के अज़म का इजहार किया। जुमरात वाले दिन हमने ऐलान किया था कि जी ये एक वीरान पार्क पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम एक अर्बन फॉरेस्ट लगाने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 3000 पौधा इसके अंदर लगाया है। और अभी गुज़श्ता दिनों में ये हमारा पहला फेज़ चल रहा है। गुज़श्ता दिनों में अभी हम और ऐलान करेंगे और साउथ के अंदर सदर टाउन के अंदर जितने भी वीरान पार्क्स पड़े हुए हैं या कोई ग्रीन बेल्ट पड़े हुए हैं इंशाल्लाह उन पे हम काम कर रहे हैं। हमें करना है, हमें अपने कराची को हरियाली में फैला देना है। हमें इतने दरख्त लगाने कि ये जो हब्स, ये जो पसीना अभी हमारे सामने आ रहा है ये कम होता चला जाए। और ये वही चीज़ है जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। आज हम करेंगे, इसका फ़ायदा हमारी आने वाली नस्लें उठाएंगी। PTI रहनुमाओं का कहना था कि शजरकारी मुहिम शहर की जरूरत है। शजरकारी से ही माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सकता है। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, कराची। लांधी में फायरिंग, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। हमले की CCTV सिटी टू मौसूल हो गई। 3 मुलजिमान ने चलती मोटरसाइकिल पर एहलकार अदनान पर गोलियां बरसाईं। जख्मी एहलकार अस्पताल में ज़ेर इलाज है। SSP मलिक का कहना था कि वाक़ई ज़ाती दुश्मनी है या कुछ और, हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। अदनान जो है वो हमारा एक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है और न्यूली वो रिक्रूटेड एहलकार है और वो अपनी ड्यूटी से वापस जा रहा था और 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने जो है वो उसको फायरिंग का निशाना बनाया है और इस वक्त हमारी सारी टीम्स मौके पे मौजूद हैं और इमीडिएटली यकीनी तौर पे जो है वो अदनान को हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए और मेडिकल एड के लिए पहुंचाया गया और उसके बाद टीम्स हमारी काम कर रही हैं। क्राइम सीन यूनिट अपना काम कर रहा है और मौके से जो भी शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और दीगर जो मालूमात है वो भी हम ले रहे हैं और इंशाल्लाह इस केस पे काम करेंगे और जो भी मुल्ज़िमान हैं इस केस के जिन्होंने ये वाक़या किया है उनको जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। देखें अभी कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, ठीक है, और तमाम ज़ावियों से जो है वो हम इसका जायज़ा ले रहे हैं और अगर ज़ाती होगा तो भी सामने आ जाएगा और अगर कोई दीगर वजह होगी वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त वो इंतहाई कब्ल वक्त होगा कि इस तफ्तीश के आगाज़ में ही इस तरह की कोई स्पेकुलेशन कर दी जाए। लेकिन तमाम ज़ावियों से पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और क्राइम सीन से तफ्तीश स्टार्ट होती है, यहाँ से हम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है फिर जैसे जैसे तफ्तीश का अमल आगे बढ़ेगा आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में पोलियो के खात्मे से मुतालिक मजमूई पेशरफ्त और चैलेंजेस का जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास में डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। इस मौका पर फील्ड और यूनियन काउंसिल की सतह पर स्टाफ के साथ मिलकर पोलियो के फ्रंट लाइन वर्कर्स की मौसर तरीके से मदद पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में दौरान चीफ सेक्रेटरी का मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने में डिविजनल और ज़िला क़यादत के अहम किरदार पर जोर दिया गया। गवर्नर IT इनिशिएटिव कोर्स इम्तहानात का 9वां रोज़ 50,000 तलबा पहले मरहले के इम्तहानात में शरीक। असातिज़ा के मुताबिक इम्तहान का पूरा तरीक़ाकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी है। सैयद ज़ुबार राशिद की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर IT इनिशिएटिव कोर्स के इम्तहानात 6 महीने की कारकर्दगी का इम्तिहान। गवर्नर हाउस IT मार्की में रोज 12 शिफ्टों में इम्तिहान मुनक्किद किया जा रहा है। इम्तिहान का दौरानिया 1 घंटे पर मुश्तमिल है। एक शिफ्ट में 200 से ज्यादा तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। गवर्नर IT कोर्स के उस्ताद जरगाम अली ने बताया कि इम्तिहान का पूरा तरीक़ेकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुबनी है। इम्तिहानी पैटर्न क्विज पर मुश्तमिल है। नकल को नाकाम बनाने के लिए इम्तिहान के दौरान बदले लैपटॉप और कंप्यूटर तलबा की रिकॉर्डिंग की जाती है, जबकि इम्तिहान के दौरान तालिब इल्म कोई दूसरी वेबसाइट भी नहीं खोल सकता। एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि रन करवा रहे हैं हर स्टूडेंट को, जो लैपटॉप लेके आएगा ना उससे ये रन होगा तो ये जितनी एप्लीकेशन फ्री होंगी वो टर्मिनेट कर देगा, क्लोज कर देगा। अगर वो क्लोज नहीं होती इनका क्विज स्टार्ट नहीं होगा। वो हमें एरर दिखा देगा, भाई ये एप्लीकेशन है फ़िलहाल रनिंग है, ये क्लोज नहीं हो रही, तो हम उनको PC पे शिफ्ट कर देते हैं।
टीचर अफसा अली ने बताया कि इम्तिहान में 8 से 10 इन्विजिलेटर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। कंप्यूटर या लैपटॉप पर लॉगिन आईडी के तहत ही इम्तिहान देना मुमकिन है। कि जो टेस्ट दे रहे हैं आपकी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होगी और फिर जब एग्ज़ाम की जो है ना वो कोई भी जो फैकल्टी मेंबर है वही आके डालेगा। टीचर स्टूडेंट्स को नहीं पता एग्ज़ाम की डलेगी, फिर वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद देन क्विज स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नर हाउस में जारी आईटी के इम्तिहानात 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के नताइज का ऐलान अगस्त के आखिरी दिनों में किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। अब आपको बताएं, शरह सूद कम होगी या मजीद बढ़ेगी, फैसला कल होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में पॉलिसी रेट का फैसला किया जाएगा। मुआशी माहिरीन शरह सूद में कमी के लिए पुरउम्मीद। मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। शरह सूद क्या रहे, फैसले के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 29 जुलाई को सर जोड़ेगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा, जिसमें माशी अदद-ओ-शुमार का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सरबराही गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद करेंगे और गवर्नर स्टेट बैंक पॉलिसी बयान पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च ने मार्केट सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्कुआत हैं। सर्वे में 75% की राय में शरह सूद में कमी की तवक्को है, जबकि 25% को शरह सूद 20.5% की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह 11% रहने की तवक्को है। सर्वे के मुताबिक टी बिल्स की नीलामी में कमी भी शरह सूद में कमी का इशारा है। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी के बाद 6 माह के टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड में 83 से 84 बेसिस पॉइंट कमी हुई है। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में शरह सूद में 4 साल बाद 150 बेसिस पॉइंट कमी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 जून 2024 को मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट कम की गई थी, जिससे शरह सूद 22% से घटकर 20.5% पर आ गई थी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक शरह सूद में 450 से 550 बेसिस पॉइंट की कमी की तवक्कुआत हैं और जून 2025 तक शरह सूद 15 से 16% के दरमियान आने की तवक्को है। अशरफ खान, सिटी 21। साहिल पर मछली का शिकार करने वालों की तादाद बढ़ने लगी। दो दरिया पर शहरी फिशिंग रॉड के हमरा पहुंचे। शिकारी कहते हैं सुबह की पहली किरण के साथ मछली के शिकार का मजा दोबारा हो जाता है। सैयद दानियाल की रिपोर्ट देखिए। मछली का शौकिया शिकार पूरी दुनिया में एक खेल का दर्जा रखता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसे एक लत समझा जाता है। कराची में मछली के शिकार के शौकीन अफराद रात गए साहिल का रुख करते हैं। ऐसा ही कुछ दो दरिया पर भी देखने को मिला, जहाँ दर्जनों की तादाद में शहरी फिशिंग रॉड और डोर के जरिए मछली का शिकार करते दिखाई दिए। कराची के साहिल पर एक शिकारी मछली लगने पर खुश दिखाई दिया। कहता है कि किस्मत हर वक्त मेहरबान नहीं होती, कभी कभी खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। भाई ये अभी तक 4 दाने मार लिए हम लोग ने। रात में तकरीबन हम 3 बजे के टाइम आए थे। कोई हमारा प्रोग्राम बना था, ये अचानक ही रात में तकरीबन 8-9 बजे के टाइम पे तो थोड़ा बहुत चारा लेके आए और फिर हम लोग बस आ गए थे। जहन जो है ना फ्रेश हो जाता है। हम लोग जब ज़्यादा बोर हो जाते हैं और मतलब काम वगैरह से थक जाते हैं तो अपने आप को सुकून के लिए, रिलैक्स होने के लिए हम इधर आ जाते हैं, ताकि हम लोग सुकून मतलब हासिल कर सकें। जी हर सैटरडे आते हैं हम लोग, और रात से नहीं, तकरीबन रात हम लोग रात से आ जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर हम 2 बजे के टाइम पे आते हैं, क्योंकि शिकार का टाइम होता है वो। शिकारियों का मानना है कि फिशिंग के लिए हुनर के साथ साथ महारत की भी ज़रूरत होती है। मछली के शिकारियों का कहना है मछली का शिकार एक अच्छे मशगले के साथ साथ दिमागी सुकून के लिए भी एक अच्छी मशक है। सैयद दानियाल, सिटी 21, कराची। कराची होलसेल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट नया नाज़िमाबाद स्टेडियम में अल आबिद स्टार्स ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। मज़ीद हम जानेंगे जावेद इकबाल से। जी मैं सर नया नाज़िमाबाद क्रिकेट स्टेडियम मौजूद जहाँ पे कराची होलसेलर क्रिकेट प्रीमियर लीग के मुकाबले जारी हैं और सेमीफाइनल का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है। अल आबिद की जो टीम है उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। हमारे साथ इससे नया नाज़िमाबाद के CEO समद हबीब साहब मौजूद, हमसे बात करें। समद साहब, किस तरह देख रहे हैं, मेला लगा हुआ पूरा, रौनक है बिल्कुल भरपूर और बाकी कुमकुमों की रोशनी में मैच हो रहे हैं आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें ये दूसरा साल है जो हम इनको जो है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं और माशाल्लाह आप भी देख रहे हैं और मैंने भी आके बड़ा इसको जो है वो मुझे भी बड़ा मज़ा आया देख के कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेला जो है वो इधर किया हुआ है और इधर बच्चे भी बड़े भी और सब यहाँ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने जो है बच्चों के लिए भी प्ले एरिया भी डेवलप किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस किस्म के टूर्नामेंट यहाँ होते रहें, तो सिर्फ ये नहीं बाकी रिहायशी भी इसको जो है इसको एंजॉय करते हैं। तो 2 साल से कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। अभी मैंने इनको ये भी कहा है कि आप मज़ीद स्पोर्ट्स भी, जैसे हमारे जिम खाना में टेनिस है, टेबल टेनिस है, दूसरी चीज़ों को भी आप देखें, उसमें भी टूर्नामेंट लोगों को कराएं।
बहुत शुक्रिया। सुना आपने समझ अभी बताया था, कोशिश है कि नए नाज़ारों में खेलों की सहूलतें ज़्यादा बनाई जाएँ, कायम की जाएँ, लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जाए। इस वजह से इस इवेंट का इनेकाद हो रहा है कि कराची होलसेलर के जो मेंबर हैं वो पूरे कराची से आए हैं, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आए, एंजॉय कर रहे हैं। और मेला लगा हुआ है क्रिकेट का यहाँ पे। अब से कुछ देर बाद जो फाइनल भी शुरू होगा, जिसमें दो बड़ी टीमें जो हैं फाइनल में मुकाबला करेंगी। जी, मौसम खुशगवार होते ही शहरियों के साहिल समंदर पर डेरे। शहरी फैमिलीज के हमरा पिकनिक मनाने टर्टल बीच पहुंचे। शहरी बोले छुट्टी के रोज़ खुशगवार मौसम में सैर सपाटे का अपना ही मज़ा है, बच्चे बड़े खूब महसूस हुए। मज़ीद हम जानेंगे अक्सा शेख की रिपोर्ट में। कराची का मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को भी मिला तफरी का बहाना। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने साहिल का रुख कर लिया। लोगों की बड़ी तादाद टर्टल बीच पर लहरों से लुत्फ अंदोज होती दिखाई दी। किसी ने ऊँट की सवारी की तो कोई घुड़सवारी करता नजर आया। शहरी कहते हैं ऐसे मौसम में फैमिलीज के साथ समंदर पे आने का अलग ही मजा है। फैमिली बहुत एंजॉय कर रही है, यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है और रेस्क्यू वाले भी आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को लेके आए, छुट्टियाँ ख़त्म पे, बच्चे मसरूफियात की वजह से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आ जाएं। पानी भी बहुत ऊंचा चांद पे चढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी बड़े भी सब मिल के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग बच्चों को लेकर आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यही सिटी से निकालते हैं, कोई आवाम है भैया, आवाम तो मानती नहीं है। कोई ऐसा बंदा है, अच्छा बंदा है जो निकल जाता है ऊपर, कोई नहीं निकलता है, पानी ले जाता है उसको। कराची में गर्मियों की छुट्टी के दौरान तकरीबन तमाम ही तफरी मकामात शहरियों से भरे हुए हैं। ऐसे में टर्टल बीच पर फैमिलियां पिकनिक मनाती दिखाई दी। इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिल वक्त इतना ही।